This conference will now be recorded. Okay, our today's topic is past statement. Past statement, today's topic. तो जनरली गाइस आपको पता है कि पास क्या होता है ना? पासवर्ड आपने सुना होगा अच्छे से। मैं आपको याद दिलवाता हूं कहां पर। तो पास आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि जब हम एक क्विज वगैरह आप लोग देखते हो तो क्विज में ये ऑप्शन होता है पास का। आपके पास एक क्वेश्चन आया and you don't want to give the answer, you don't know the answer as well, or either you don't want to give the answer, so you just say pass, है ना? Pass means I don't want to give the answer, that means pass. Okay, the same meaning in the Python of pass statement. So I'm writing few points about this statement. Like first point is empty, empty statement. ये एक empty statement है। क्या ये एक एम्प्टी स्टेटमेंट है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज इट इज नल स्टेटमेंट। नल स्टेटमेंट, नल मतलब नथिंग, नल स्टेटमेंट है एम्प्टी, राइट? एंड इट कैन बी से इट इट it would it it not it it does not do anything। ठीक है, एनीथिंग, ये कुछ करती भी नहीं। ओके, सो या सो बैक टू द टॉपिक। एम्प्टी स्टेटमेंट है, इट इज नल स्टेटमेंट एंड इट डज नॉट डू एनीथिंग, ये कुछ नहीं करती, राइट? देन व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड? ओके, because we are learning transfer statements, so that is the reason I'm covering this topic. But the expense the exclusive working of this with the object oriented system, है ना? When we learn about the class, when we learn about the ऑब्जेक्ट कंसेप्ट, है ना, तो तब हम इसको कंप्लीटली पढ़ेंगे पास को। फिलहाल के लिए एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं कि पास स्टेटमेंट करता क्या है। तो पास स्टेटमेंट कुछ नहीं करता, ये एक नल स्टेटमेंट है और ये एक एम्प्टी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस एम्प्टी स्टेटमेंट को कैसे हमें यूज करना है, ठीक है, क्या करना है इसके लिए। तो बच्चों आपको ये पता है या होना चाहिए कि if I'm writing anything, if I'm writing some function, let's suppose I'm writing some function f. Okay, so I just I don't want to give any statement. Okay, or should I say I have a function I want to give print. Okay, just testing. Okay, I done this. I create one more function def f1. Okay, one more function I have created. So I'm not giving any statements in it, or either give some statement. Just wait, testing. Okay, just testing one, or should I say testing one, or f1 testing 2. Okay, so I write these two statements, and if I run this code, anyone can guess the output? Yes, if I run this code, I show you the code.
Anyone guess the output? Yes, I received the answers. No output, blank, none, no output. That's good. That's good. Tanu, blank. Okay. I have Ashish, Anushka, Arun, Divya, Duplesh, Ekta, Junaid, Kailash, Monica, Raghav, Soham, Tanu, Tanuj, Tina, Vidushi. This much student I have, but I received very less answers. Junaid, are you not listening me? Junaid, okay, Junaid का आंसर आ गया. Duplesh, Monica, blank. Ashish, function is not called. That's good. That's good, Ashish. Yes, Duplesh, where is the Duplesh? Vidushi, blank. Tina, blank. Okay. Almost all students say blank. Okay. And you know the reason behind this? Yeah. Anyone know the reason behind this? Anyone can give me the reason behind this? Okay, Ashish already told the reason. Function is not called. Yeah, Vidushi say, okay, Tanu Single, okay. That's good, that's good. Function is not called, definitely. So output will be blank. भले ही मैंने यहाँ पे दो फंक्शन बनाए, but उनको मैंने कॉल नहीं किया, okay? So let call these functions. I call f1 and f as well. Okay, I call these functions no matter. So I run this code again. Okay, both functions are called. Fine. Now, if suppose I have created f1, I'm not calling this. I have created f1, but I am not giving any definition. I am not giving any body to the f1. Okay. In that situation, what happened? This program, what will be the output? Okay, let's guess. CLS. What will be the output if I run this? Okay. Raghav say error. Vidushi say blank. Tanu says blank. Tanuj say error. Okay. Anyone? Very less answer I have received. No output. Arun, good. Tina, blank. Junaid, error. That's great. Divya, no output. एकता एक लाइन तो होनी चाहिए. Okay, Raghav said. Monica, no output. Function में. Okay, that's good. Okay. It cannot be blank. Okay. Okay. Right. So according to Python, you know that जिन लोगों का आंसर नो आउटपुट या ब्लैंक है वो लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने कि इफ आई रन दिस कोड तो इट जनरेट एरर. कैन यू सी expected an intended block, right? Expected an intended block. इसका सिंपली मीनिंग ये है कि इट मस्ट हैव ए सिंगल इंस्ट्रक्शन. कि अगर आप कोई भी ब्लॉक बना रहे हो, है ना, कोई ब्लॉक का मतलब है मेरा कोई इफ स्टेटमेंट बनाया तो बच्चों उसमें भी ब्लॉक बनता है. ब्लॉक का मतलब है कॉलन साइन लग के उसकी बॉडी आती है ना. आप इफ एल्स यूज कर रहे हो, आप फॉर लूप यूज कर रहे हो, आप वाइल यूज कर रहे हो, आप फंक्शन यूज कर रहे हो, और आगे एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग क्लास. आप क्लास यूज कर रहे हो. इन दैट सिचुएशन, ओके, यू मस्ट हैव at least one instruction, at least one statement. Okay, either that statement is just a assignment of variable. No problem in this. If I run this code now, happily okay, no problem, right? But if I want it, if I do not give any statement, okay, I just save it, and now if I run, it generate error. कह रहा है expected a intended block. कह रहा है कि एक इंस्ट्रक्शन होना कंपलसरी है. बट द क्वेश्चन इज सर, आई डोंट वांट टू गिव एनी डेफिनेशन.
I don't want to give any definition right now, and I don't want error also. I don't want give any statement right now. I don't want give any meaningful statement right now, and I don't want get error also. Okay. So what we can do this? So what we can do? We can say, okay, I don't want to give the definition, just pass. Okay. I compiler को मैं बोल रहा हूं कि right now right now I don't give any definition, and पाइथन के कंपाइलर को मैं बोलना चाहता हूं कि भाई डेफिनेशन नहीं देनी, तो क्या कर दे, इसको पास कर दे कि फंक्शन है, फंक्शन के अंदर मेरे को कोई मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं देनी, बट फंक्शन मुझे रखना है. ओके, सो गिव पास. सो दिस इज द जस्ट द सॉल्यूशन. But the biggest question behind this, so then why we create the function? Yes, anyone? Yes, anyone? Then why we create this function? Sir, what is the requirement to do this function? You just need to pass this. अगर आपको पास ही करना है, फालतू की स्टेटमेंट है, राइट? फॉर लेटर यूज. तो okay, I received some interesting answers. Okay. The first answer, for future use, if later I want to some use, for later use, no error. That's great, Shoham. That's great. Statement, okay, no output. Okay. अरे एक बात बताओ, जब इस फंक्शन को मुझे लेटर यूज करना है एंड शो मुझे कोई एरर नहीं चाहिए, तो मैं ये फंक्शन बना क्यों रहा हूं भाई? जब मुझे जरूरत होगी तब बना लूंगा ना. पाइथन ये कह रहा है कि अभी बनाओ सारे फंक्शंस. पाइथन ने ये नहीं कहा ना कि नहीं भाई, जो भी फंक्शन आपको यूज करने अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने असाइनमेंट के अंदर, पहले से बना के रख लो, बाद में मैं अलाउ नहीं करूंगा बनाने के लिए. ऐसा तो नहीं है ना. नो सच टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन विद पाइथन. आप बाद में बना सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट? सो माय थिंग इज व्हाट, कि जब ये फंक्शन बाद में क्रिएट हो सकता है, तो इसको बना के पास देने का क्या फायदा है? ओके, चलिए मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको, ठीक है? आपको अच्छी लगेगी. और स्टोरी ये है कि फिलहाल तो यूज यही है कि जस्ट आई डोंट वांट टू गिव डेफिनेशन, आई डू पास. ओके, some more things I do. If 10 equal है 10k and I do pass, and else I do pass. Just this I want, and later I do print test. Okay, later I do print test, and if I run this code, so testing is there. अरे सर, जब आपको कुछ करना ही नहीं था, इफ के अंदर कोई कंडीशन के अंदर आपको कोई एक्शन परफॉर्म ही नहीं करना था, व्हाई यू यूज इफ? सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू यूज इफ? सो आई एम टेलिंग यू सिंपल स्टोरी. ओके, फनी है, शायद आप लोगों ने कभी सुनी हो, आई डोंट नो. स्टोरी ये है कि टीचर है ना, टीचर क्या करता है? देखो, दो चीजें मानते हैं, है ना. एक कहानी सुनाता हूं आपको, अच्छी सी कहानी है, समझ में आएगी. एक है इधर टीचर, ठीक है, एक है इधर स्टूडेंट. एग्री ना? अब इस कहानी के साथ में आपको यस नो बोलना है मेरे को, ठीक है? यस फॉर वाई एंड नो फॉर एन, राइट? तो यस नो बोलते जाना है, तभी मेरे को पता चलेगा कि आप कहानी सुन रहे हो, समझ में आ रही है. ठीक है, चलो इसको मिनिमाइज कर देते हैं. लेट्स डू सम फन. तो यहां पर क्या है, एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, राइट? अब ये जो टीचर है, स्टूडेंट क्या करता है, अपनी बहुत सारी चीज अपने टीचर से इनहेरिट करता है. एग्री और नॉट? टीचर से बहुत सारी चीजें लेता है वो. क्या क्या लेता है बताओ? एजुकेशन लेता है ना,
समटाइम टीचर के बोलने का स्टाइल, समटाइम टीचर के चलने का स्टाइल, समटाइम उसका बिहेवियर, है ना, समटाइम बहुत सारी चीजें है ना, समटाइम कुछ एक्सेसरीज पसंद आ गई, अरे यार सर के पास ये पेन बड़ा अच्छा है, सर से पूछता हूं कि अगर मेरी पॉकेट अलाउ करेगी तो मैं भी ये वाला पेन लेके आऊंगा या लेके आऊंगे ना, ऐसा होता है ना, क्योंकि आपके सामने एक रोल मॉडल है जिसको आप फॉलो करते हो, बहुत सारी चीजें इनहेरिट करते हो, है ना। अब टीचर क्या करता है, इनहेरिटेंस के साथ एक चीज बनाता है जिसको कहते हैं एग्जाम, है ना। कौन बनाता है इसको, बोलो, एग्जाम कौन बनाता है, टीचर ना। आर यू नॉट लिसनिंग मी, आई एम नॉट रिसीविंग एनी आंसर्स। हाँ गुड, वेरी वेरी लेस आंसर आई रिसीव्ड, ओके ठीक है। एक टीचर एक एग्जाम बनाता है ना, लेकिन उसे करता कौन है, हु परफॉर्म दैट एग्जाम, बोलो, स्टूडेंट ना, स्टूडेंट परफॉर्म दैट एग्जाम, राइट। जब टीचर को करना नहीं है तो बनाया क्यों, बोलो, हाँ गुड, जब टीचर को करना नहीं था तो बनाया क्यों, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना, पूछना, मेरे से मत पूछना, बस टीचर से ही पूछना, मेरे से मत पूछना, मैंने क्वेश्चन दिया है, मेरे से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी टीचर से पूछो, जब आपको करना नहीं है, ये एक्शन परफॉर्म करना नहीं था तो बनाया क्यों, ठीक है। तो बनाया किस लिए, पास करने के लिए, किस लिए बनाया, जल्दी बताओ, पास करने के लिए, कि भाई स्टूडेंट को करना है पास, स्टूडेंट की करनी है एबिलिटी चेक, तो ये एग्जाम बच्चों को देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही क्या है कि अभी जो है ना, हम मान लेते हैं कि ये एक क्लास है, क्या है ये, क्लास, आगे हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे क्लास का, ठीक है, क्लास का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं टीचर एक क्लास है और एक क्लास है स्टूडेंट, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा ध्यान मत देना टॉपिक पर, मतलब बस कहानी पर ध्यान देना, टेक्निकलिटीज में मत जाना, ठीक है। ये क्लास क्या होती है ये मत ध्यान दो, बस मान लो कि क्लास होती है, और ये हमारी ये हमारी ये हमारी है पेरेंट क्लास, दिस इज व्हाट कॉल्ड पेरेंट, पेरेंट, है ना, या रूट क्लास कह सकते हैं। और ये है हमारी चाइल्ड क्लास, जो स्टूडेंट वाली है ये हमारी चाइल्ड। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया ना, प्रॉपर्टी इनहेरिट, एक वर्ड यूज किया मैंने, इनहेरिट, है ना, इनहेरिट यूज किया। तो इनहेरिट क्या हो रहा है कि पेरेंट क्लास से या टीचर क्लास से बहुत सारी चीजें इनहेरिट होके कहां मिलती है, स्टूडेंट के अंदर मिलती है, ठीक है। अब देखो, मैंने प्रोग्रामिंग सीखी, है ना, अपना सब्जेक्ट मेरा है, लेकिन ये सारी फंक्शनैलिटी मैं किसको दे रहा हूं, बोलो, दिस इज फॉर मी, दैट एजुकेशन विच आई डू फॉर माई सेल्फ, है वो मैंने अपने लिए की है तुम्हारे लिए, जल्दी बोलो, स्टूडेंट्स के लिए, राइट, तुम लोगों के लिए की, ठीक है। अब मेरी पढ़ाई पे जितना खर्चा हुआ है वो आपसे फीस के तौर पे लिया जाता है ना, ऐसा ही होता है, वो तो खर्चा लिया ही नहीं जा रहा, बस फीस तो आपसे आपको पढ़ाने की ली जा रही है, चलो कोई बात नहीं, जो का पार्ट। तो ये जो पेरेंट क्लास है, इस पेरेंट क्लास से बहुत सारा डेटा, जिसको मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इनहेरिटेंस, वो आता है बच्चों स्टूडेंट के पास, है ना। सेम वे, अगर क्लास जो टीचर है वो कुछ ऐसा फंक्शन क्रिएट करना चाहती है जिससे वो खुद ना परफॉर्म करे, एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा असाइनमेंट जो टीचर ने तो क्रिएट किया, कौन करता है, क्लास, पेरेंट क्लास क्रिएट कर रही है, बट एट दैट टाइम टीचर डोंट वांट टू परफॉर्म दैट एक्शन, तो टीचर क्या करेगा, फंक्शन तो बना दिया लेकिन इसको क्या कर देगा, पास कर देगा। ये एबिलिटी किसके पास है, फंक्शन बनाने की एबिलिटी किसके पास है, पेरेंट क्लास के पास है, राइट। बट दैट पेरेंट क्लास राइट नाउ डोंट वांट टू इंप्लीमेंट, वो पेरेंट क्लास उस समय उसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहती। पेरेंट क्लास क्या कर रही है कि उसने एक फंक्शन बना दिया, एंड दैट फंक्शन, जब ये फंक्शन यहां पे बनाया और ये सारी प्रॉपर्टी जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है, वो सारी प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास की इनहेरिट करती है।
तो क्या होगा, जब चाइल्ड क्लास इस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी तो एग्जाम भी यहां पर आएगा, है ना, एग्जाम भी यहां पर आएगा। इन दैट केस ध्यान रखिए बच्चों, जब पेरेंट क्लास किसी फंक्शन को बनाती है और उसको इंप्लीमेंट नहीं करती, तो अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग, अकॉर्डिंग टू जनरल लाइफ सिचुएशन, उससे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि भाई जो चाइल्ड क्लास होगी वो उसको परफॉर्म करेगी। ओके, जो चाइल्ड क्लास है वो उसको इंप्लीमेंट करेगी, राइट। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने बचपन में टीचर ने आपको डॉट 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 करके ए लिखना सिखाया होगा, है ना, ए डॉट, सॉरी डॉट, अबे डॉट डॉट डॉट, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर डॉट, है ना। फिर आपने क्या किया, तो टीचर ने एक एक फंक्शन बना दिया, लेकिन इसको इंप्लीमेंट किसने किया, स्टूडेंट ने, कि भाई डॉट डॉट मिला दो और बन जाएगी ए, है ना, डॉट डॉट मिला दो बन जाएगी ए। तो अब कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से किया हो, जैसे मेरे से ये दो डॉट छूट गई, आई एम नॉट ए गुड स्टूडेंट, राइट, तो ये दो डॉट छूट गई, आई एम ए गुड टीचर बट नॉट ए गुड स्टूडेंट। तो अब यहां से जो दो डॉट छूटी हैं, हो सकता है कि जो अच्छे से बनाए वो इन दो डॉट को भी इंक्लूड कर ले, है ना। तो इंप्लीमेंटेड क्लास जो उस फंक्शन को इंप्लीमेंट करेगी वो उस फंक्शन को डेफिनेशन दे सकती है, ठीक है। सो इफ आई वांट टू क्रिएट ए फंक्शन बट आई डोंट वांट टू गिव द डेफिनेशन, है, देखिए ये केवल तभी इंप्लीमेंटेड होता है जब हम क्लास का कंसेप्ट यूज करेंगे। अभी जो यहां पे मैंने पास करके आपको दिखाया है, इफ के साथ मैंने पास किया, फंक्शन के अंदर मैंने पास स्टेटमेंट लगाया, इट इज जस्ट द बेसिक आइडिया ऑफ पास स्टेटमेंट। बट what is the exact idea of the pass statement we learn later in the object oriented concept, जहां पर हम क्लास का कंसेप्ट पढ़ेंगे वहां पर हम ये कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे एक्चुअल में। फिलहाल जस्ट आई एम गिविंग यू आइडिया कि भाई पास स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब मेरे पास एबिलिटी है कि भाई फंक्शन तो मैं ही बना सकता हूं, लेकिन उसको मैं इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, इंप्लीमेंट मेरी चाइल्ड क्लास करेगी, जो मेरी चाइल्ड क्लास है वो इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करेगी। उस सिचुएशन में हम फंक्शन को खाली तो नहीं छोड़ सकते। हाँ, मैंने फंक्शन क्रिएट किया, लेट्स सी, आई क्रिएट ए फंक्शन एग्जाम, I create a function exam but I don't want to give the definition। इस सिचुएशन में अभी आपने देखा क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये एरर नहीं चाहता, आई डोंट वांट दिस एरर। भाई मेरे को क्या करना है कि भाई फंक्शन मैंने बना दिया एंड डू इट पास, कंपाइलर से मैंने कहा कि भाई इसको कर दो पास, ठीक है, कि अभी इसको आप क्या कर दो, पास कर दो। राइट नाउ आई डोंट वांट टू गिव द डेफिनेशन, माई चाइल्ड क्लास, द क्लास हु इनहेरिट मी, जो मुझे इनहेरिट करेगी, जो मेरे फंक्शंस को यूज करेगी, उस फंक्शन, वो फंक्शन इस क्लास को, इस फंक्शन को इंप्लीमेंटेशन देंगे, ठीक है। तो फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया बट राइट नाउ आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गिव द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट फंक्शन। तो मैंने क्या किया, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए चाइल्ड क्लास को दे दिया। इज इट क्लियर? जैसे सिंपली सो मेनी थिंग्स आर देयर, आपको 5 रुपए मिले, अब 5 रुपए आपको दिए गए तो उसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, आप कर रहे हो। मैंने वो 5 रुपए आपको दिए, सपोज करना बस, ठीक है, 5 रुपए मैंने आपको दिए और वो 5 रुपए आपने लेके जाके उसकी चॉकलेट खा ली, गोलगप्पे खा लिए, कुछ भी मतलब आपने उसको कर लिया, है ना, कुरकुरे खा लिए, कुछ भी आपने उसको कर लिया। तो इंप्लीमेंटेशन क्लास, अगर मैंने कोई फंक्शन क्रिएट किया बट आई डोंट वांट टू गिव द डेफिनेशन, डेफिनेशन मेरी चाइल्ड क्लास देगी, उस सिचुएशन में हम फंक्शन को एम्प्टी डेफिनेशन के साथ क्रिएट करते हैं। बट एम्प्टी डेफिनेशन यहां पर पॉसिबल नहीं है। इन अदर लैंग्वेजेस, empty definition can be possible, but in Python we cannot do the empty definition. For empty definition we do pass, because you remember what is the first line, empty statement. What is pass? Pass is nothing, pass is just a empty statement. If I want to create a function with empty definition, so I create function and in the definition I pass, I write the keyword pass, I write the statement pass.
So that function is considered as a function with empty definition. That function is considered as empty definition function. Is it clear to all? What is the reason behind the pass statement? Yes. Anyone required any explanation on it? Any more explanation on it? I think this is clear to all. For today's scenario, अभी मैंने जो सिनेरियो आपको बताया कि भाई पास का काम क्या है वो समझ में आ गया. पास एक एम्प्टी स्टेटमेंट है, ये कुछ नहीं करती है ना, ये इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है. एंड पास को हम कैसे यूज कर सकते हैं वो हमने समझ लिया. एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन अपन लोग इसको पढ़ेंगे जब हम क्लास और फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है ना. क्लास जब हम पढ़ेंगे तब इसका एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन हम लोग पढ़ेंगे. सो अप टू नाउ नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सप्लेनेशन. यस एवरीवन? ओके, नो आंसर्स means this is clear. Okay. The next statement is, चलिए आज टाइम तो ओवर हो गया है, वैसे 10 बज गए. नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग कल पढ़ेंगे. मैं कल आपको पढ़ाऊंगा डेल स्टेटमेंट. ओके कल. और अगर कोई आपको नया टाइम टेबल मिल जाए, है ना, तो फिर उसके हिसाब से परफॉर्म करेंगे जो नया टाइम टेबल आपको मिलेगा.